As hard as it is to get back from vacation, I hope your mind is as fresh and energized as ever. I'm sure your holiday was really fulfilling and helped you relax. It's time for us roll up our sleeves and get to work now. It is another chance to learn and discover the potential in you. Hello everyone, this is Sajid Khote and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Dear children, today we are beginning with our chapter number 13 by name Congruence of Triangles, okay, on which from which today we are taking care of page number 81 and 82 where they have given us something from let's recall and let's learn, okay. Alright, so let's come here. See, there is something given to us in let's recall where they are giving us one figure. Okay, and they're telling us that write answers to the following questions referring to the adjacent figure. So one figure is being given to us and they're asking us some questions and we have to answer those questions. Okay, come on, let's see one by one. Which is the angle opposite to the side DE? Which is the angle opposite to the side DE? Now, where is side DE? In this triangle DEF, my side DE is here, right? And exactly the angle opposite to this side is this one. And here I have my vertex F. That means it is my angle F. So my answer is angle F. So angle F is the angle basically which is opposite to side DE. Okay. Question number 2 says, which is the side opposite to angle E? Now they are targeting angle E. Okay. So angle E किधर है हमारा? इधर है angle E. And which side is opposite to this angle? Now this angle is here, E, okay, and the side opposite to this is here, opposite. इसके opposite में ये वाला है, तो DF है. So side DF हमारा answer है. That side DF is the side which is opposite to angle E. Okay. Question number 3 goes like this: which angle is included by side DE and side DF? Okay. Where is side DE and side DF? So side DE एंड साइड DF, ये दो साइड्स हैं. अब ये दो साइड्स जो है हमारे पास, ओके, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो कौन सा एंगल बन रहा है? आप देखो, जब इसको और इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल बनेगा हमारा, राइट? तो वी विल गेट दिस एंगल. सो आवर आंसर इज एंगल D. सो एंगल D इज द वन, ओके, व्हिच इज फॉर्म्ड, ओके, बाय द यूनियन ऑफ दीज टू sides D and side DF. Question number 4 is, which side is included by angle E and angle F? Now, which side is included? Angle E and angle F. So, where is angle E? Angle E is here, angle F is here. So, with these two angles, okay, the side which is included is this one, correct? So, it is side EF. Okay? Then, question number 5 is, state the angles adjacent to side DE. Okay, state the angles adjacent to side DE. Adjacent means just next to it. Okay, adjacent मतलब just next to it, मतलब उसके बाजू वाला. Alright, so angle, state the angles adjacent to side DE. Side DE कहाँ पे देखते हैं? ये side DE है, correct ना? अब ये side को लग करके एक ये angle है और एक ये angle है. So my answer is angle D and angle E. So these two are the angles which are adjacent to side DE. Okay, dear children. So basically, this is nothing new for us. This we had already taken care in our previous standards. All right. So now 3 more statements are there which we have already studied in our previous standards. Come on, let us see one by one. The first thing what we studied last year was the figures which exactly coincide with each other are called congruent figures. I repeat, the figures which exactly coincide with each other are called congruent फिगर्स. कोइंसाइड मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स अगर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल, जैसे एक ट्राइंगल आपको यहाँ दिख रहा है ना DEF, अगर हम एक और ट्राइंगल बनाएंगे DEF के साथ में एक और ट्राइंगल बनाएंगे, सपोज ABC बना लिया ट्राइंगल हम लोगों ने, और अगर हम उस ट्राइंगल को अगर उठा करके अगर इस ट्राइंगल पे अगर रख देंगे DEF के ऊपर, ठीक है, उसको सुपर इम्पोज कर देंगे उसके ऊपर, कि समझ में ना आए कि ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC में से कौन सा ट्राइंगल ऊपर है और नीचे है, ठीक है, मतलब पूरा ट्राइंगल वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया, उसको हम बोलते हैं वो कोइंसाइड हो गया. जब ऐसा होगा तब हम कहेंगे कि ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है. ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट. The figures which exactly coincide with each other are called congruent figures. Okay, इसके बारे में हम आगे और पढ़ने वाले इसी वीडियो में, डोंट वरी. ऑलराइट,
Then the second thing is the segments of equal lengths are congruent. Segments of equal lengths are congruent. जब भी हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स होंगे और उनका मेजर इक्वल अगर होगा तो हम कहेंगे ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. क्या है? कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट है. ओके. The third one is the angles of equal measures are congruent. The angles of equal measures are congruent. जब भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स होंगे और वहां पर एक एंगल यहां पर एक एंगल यहां पर, दो एंगल्स ऐसे हैं हमारे पास जिनका मेजर्स इक्वल है. ठीक है. जैसे कि मान लो कि एक एंगल 35 डिग्रीज है इस ट्राइंगल का DEF का. ठीक है. दूसरा ट्राइंगल हम लोगों ने ABC सपोज किया था. उसमें का कोई एक एंगल, कोई भी ABC में से कोई भी एक एंगल अगर 35 डिग्रीज अगर है तो ये दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका मेजर्स इक्वल है. हम कहेंगे कि ये दो एंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है. सो ये था थर्ड वाला. द एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट. चलो, नाउ दिस वाज लेट्स रिकॉल पार्ट जो हमने ऑलरेडी किया है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अंदर. हमने जो खाली किया है, खाली हमारी मेमोरी को खाली थोड़ा ब्लश किया है, नथिंग एल्स. कम ऑन. Now let's come to let's learn part, and we are learning now congruence of triangle. In this they are giving us that there can be 6 different ways to match the vertices for the triangles to be placed upon each other. I repeat, there can be 6 different ways. 6 अलग-अलग तरीके हैं किसके लिए? To match the vertices of the triangles. Vertices of the triangles. Vertices क्या होता है? ये D जो है एक वर्टेक्स है ट्राइंगल का, E एक वर्टेक्स है, F एक वर्टेक्स है. उसी तरह जो हमने ट्राइंगल ABC हमने सपोज किया था कुछ देर पहले, उसका भी तीनों वर्टाइसेस है. A एक वर्टेक्स है, B एक वर्टेक्स है, C एक वर्टेक्स है. ओके. So there can be 6 different ways to match the vertices of the triangles to be placed upon each other. एक दूसरे के ऊपर उसको रखने के लिए या उसको सुपर इम्पोज करने के लिए, जो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF को लेकर के, उसी तरह दो ट्राइंगल को एक के ऊपर एक रखने के लिए या कोइंसाइड करने के लिए या सुपर इम्पोज करने के लिए देयर आर 6 डिफरेंट वेज जिससे हम उसको मैच कर सकते हैं. ठीक है. अब आगे बोल रहा है द वे ऑफ मैचिंग, जो तरीका है उसको मैच करने का, the way of matching the vertices is called one-to-one correspondence between the vertices of the triangle. तो जिस तरह हम उनके vertices को मैच करने वाले हैं वो तरीका जो है उसको बोलते हैं one-to-one correspondence. Okay? Now let us see. Assume these two triangles now. Okay? ये दो ट्राइंगल हमने हमारे सामने हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. और यहाँ पे क्या हमें मिलता है? Now we can express the correspondence between the vertices of triangle ABC and triangle PQR in 6 different ways as follows. Now, having been studied here or understood here that there are 6 ways, right? 6 given, 6 different ways to match the vertices for the triangles. All right, and that way of matching is called one-to-one correspondence. So basically, when we have two triangles, okay, we have triangle ABC and triangle PQR. When we want to match these two, okay, we want to superimpose these two, there are 6 different ways. Okay, so now see, now you can see 1 2 3 4 5 6, they are already there on the board for you. So the first one is ABC is in one-to-one correspondence with PQR. Okay, so where is ABC? ABC and PQR. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ट्राइंगल PQR को उठाकर, ठीक है, अगर इस पे अगर रख दूंगा तो मेरा A और P ये दो वर्टाइसेस जो है वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे. उसी तरह सेकेंड वर्टेक्स मेरा B है यहां पर और इसके अंदर मेरा सेकेंड वर्टेक्स Q है, तो मेरा वर्टेक्स B और वर्टेक्स Q ये जो है दोनों एक के ऊपर एक आ जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे. ठीक है. और वर्टेक्स 3 जो है C और यहाँ पे थर्ड वर्टेक्स R है, तो ये C और ये R ये दोनों वर्टाइसेस जो है वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे. अलग अलग टर्म्स है उसके लिए. ऑलराइट, उसको हम बोलते हैं ABC is in one-to-one correspondence with PQR. ये हो गया हमारा फर्स्ट वे ऑफ मैचिंग. सेकेंड वे इज ABC with PRQ. अभी देखो हमने सब जगह पर ABC कॉमन रखा हुआ है, राइट ना, ऑल 6 मेथड्स के अंदर और वेज के अंदर खाली ट्राइंगल PQR जो है उसका खाली जो वर्टाइसेस जो है हमने
अलग अलग चेंज, हमने अलग अलग चेंज किया है उसको, ठीक है। अब देखो सेकेंड टाइम में आ रहा है ABC is in one-to-one correspondence with PRQ. इसका मतलब ये होता है that in second way of matching these two triangles, okay, is what? Vertex A and vertex P. Vertex A and vertex P, they will superimpose each other. ठीक है, जब मैं ट्राइंगल PQR को उठा करके अगर मैं ट्राइंगल ABC के ऊपर रख दूंगा तो मेरा वर्टेक्स A और वर्टेक्स P वो एक के ऊपर एक आ जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि मेरा कौन सा वर्टेक्स ऊपर है और कौन सा वर्टेक्स नीचे है, ठीक है, यानी एग्जैक्टली कोइंसाइड हो गया। देन वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स R, सेकंड वर्टेक्स कौन सा है यहाँ पे B है, यहाँ पे R है, तो B और R एक के ऊपर एक आ जाएंगे, ओके। तो B एंड R ये दोनों एक के ऊपर एक आ जाएंगे, और थर्ड टाइम C और Q, ये दो वर्टाइसेस है C एंड Q, ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी हम करेंगे तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो जाएंगे एंड दे विल कम इन वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ओके। इतना समझ रहे हैं बच्चों, वेरी गुड। उसी तरह देखो अभी आपको 3 4 5 6 दिख रहा है, आपका हर जगह पर आपका ट्राइंगल ABC को हमने वैसे ही रखा हुआ है, खाली वन टू वन करस्पॉन्डेंस के लिए हमने दूसरा ट्राइंगल जो है उनके वर्टाइसेस को हमने आगे पीछे किया हुआ है, ठीक है। सो यू कैन सी ABC with QPR, ABCS, QRP, then RPQ, then RQP. So basically these are the 6 different ways, okay, 6 different ways to match the vertices. तो देखो हमने सब जगह वर्टाइसेस को मैच किया हुआ है, कोइंसाइड किया हुआ है, ओके। तो ABC भी वर्टाइसेस ही है, PQR भी वर्टाइसेस ही है, ऑलराइट। नाउ इन ईच ऑफ द 6 correspondences, यहां जो हमने देखा 6 correspondences देखा हम लोगों ने, okay, we get 3 pairs of corresponding sides and 3 pairs of corresponding angles, right? अभी जाहिर सी बात है जब ट्राइंगल है तो साइड्स तो है ही और साइड्स है, एंगल्स भी है, करेक्ट। जब भी हम कोई फिगर बनाते हैं, राइट, ट्राइंगल बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, रोमबस बना रहे हैं, व्हाटएवर, करेक्ट ना, वहां पे साइड्स भी हैं और हमारे पास एंगल्स भी है। सो जब भी हम ये 6 अलग अलग तरीके से जो करस्पॉन्डेंसेस हमारे सामने है, हम जब इसको बनाएंगे इसको, तभी हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे और 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आएंगे हमारे पास। जैसे एग्जांपल देखो, हमने पहला ले लिया, ये जो करस्पॉन्डेंस हमारा है ABC एंड PQR, दे आर इन वन टू वन करस्पॉन्डेंस। जब हम ये लेते हैं एग्जांपल, तो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या बनते हैं। तो देखो पहला वर्टेक्स हमारा A है, यहाँ पे पहला वर्टेक्स P है, तो इसका मतलब हमारा एंगल A और एंगल P जो है दे कम इन वन टू वन करस्पॉन्डेंस, राइट। देन एंगल B दूसरा है, एंगल Q दूसरा है यहाँ पर, सो एंगल B एंड एंगल Q दे कम इन वन टू वन करस्पॉन्डेंस। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको ना, एक डैश डाल करके दोनों तरफ एरो मार्क है, लाइन का छोटा सिंबल जो है, ठीक है, ये सिंबल को हम यूज करते हैं फॉर शोइंग वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ओके। देन थर्ड वर्टेक्स है C, यहाँ पे थर्ड वर्टेक्स है R, सो एंगल C एंड एंगल R, सो एंगल C एंड एंगल R दे आर इन वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ठीक है। अभी तीनों एंगल्स इसके और तीनों एंगल्स इसके हमने कवर कर लिए। अब देखते हैं साइड्स को। चलो साइड के लिए बताइए कि हमें 2 वर्टाइसेस चाहिए होते हैं, तो पहले हम A और B लेते हैं। अगर हमने ये 2 पहले लिया तो यहां पे पहले 2 PQ है, राइट। तो साइड AB और साइड PQ की बात करें तो साइड AB और साइड PQ, ये और ये साइड जो है they are in one to one correspondence. You can see side AB is in one to one correspondence with side PQ. Okay? अब हम B और C ले रहे हैं, BC, तो यहां पर QR, करेक्ट ना, ये सेकेंड और थर्ड वर्टाइसेस है इस ट्राइंगल के, ये सेकेंड और थर्ड वर्टाइसेस है इस ट्राइंगल के, ठीक है। सो साइड BC और साइड QR की बात हो रही है अभी, तो साइड BC is in one to one correspondence with side QR. Okay? Then थर्ड है A और C, वर्टेक्स A एंड वर्टेक्स C। यहां पर फर्स्ट और थर्ड वर्टाइसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वर्टेक्स इज P, थर्ड वर्टेक्स इज R, ओके। सो A और C यहां पर, P और R यहां पर, सो साइड AC इज इन वन टू वन करस्पॉन्डेंस विद साइड PR। अब और कोई साइड्स नहीं बचे हमारे पास। इसका मतलब जब भी हम 2 ट्राइंगल्स के अंदर हम ये 6 तरीके के जब हम का वन टू वन करस्पॉन्डेंस दिखाते हैं तो हमारे पास ये बनते हैं 3 pairs of corresponding angles and 3 pairs of corresponding sides. All right. Now, if for the correspondence ABC and PQR, okay, the triangles exactly coincide with each other, then the triangles ABC
and triangle PQR are congruent to each other. That is, it is shown like this geometrically or mathematically. Okay, that means क्या बोल रहा है, जब हम इसको दिखाते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस में, जो हमने एग्जाम्पल यहां पे लिया, हम दोबारा वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, देखिए यहां पर हमने सिर्फ वन टू वन करस्पॉन्डेंस दिखाया है, राइट ना, एक के ऊपर एक ओवरलैप करने के लिए दिखाया है हमने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या साइड कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, यहां तक तो हमने ये देखा कि वन टू वन करस्पॉन्डेंस क्या है। अब आगे बात आ रही है, इफ फॉर द करस्पॉन्डेंस दिस वन दैट ट्राइंगल ABC is in one to one correspondence with PQR, अगर ये the triangles exactly coincide with each other, अगर exactly coincide अगर हो गया, राइट ना, जो हमने यहां पर देखा है या हमने यहां पर देखा है, जब हम एक के ऊपर रखेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा हमको कि भाई कौन सा एंगल सामने है, कौन सा एंगल पीछे है, या कौन सा एंगल ऊपर है और कौन सा एंगल नीचे है, राइट ना, डिपेंड करता है कि आप ये दो ट्राइंगल्स को सामने कैसे रखते हो। इमेजिन करो कि आपने ये दो ट्राइंगल तो काट लिया है, ठीक है, आपने इसको काट लिया दो ट्राइंगल्स को और आप एक गेम खेल रहे हो फॉर एग्जांपल, ऑलराइट, तो जब भी आप ट्राइंगल्स को अलग अलग शेप पे आप रखने की कोशिश करोगे तो समझ में ही नहीं आएगा आपको। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बिकॉज सबके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट निकल रहे हैं और सबके साइड्स जो है उनके मेजर्स भी कॉन्ग्रुएंट निकल रहे हैं, इक्वल निकल रहे हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है हमको कि कौन सा साइड आगे है, कौन सा साइड पीछे है, या कौन सा ऊपर या कौन सा नीचे है, एंगल या साइड जो कुछ भी है वो, ऑलराइट। सो वही लिखा हुआ है, इफ फॉर द करस्पॉन्डेंस ABC एंड PQR the triangles exactly coincide with each other, then अगर ऐसा अगर हो गया, then the triangle ABC and triangle PQR are said to be congruent triangles, okay, and they're said to be congruent to each other, और उसको हम mathematically या geometrically हम लिखते हैं like this, triangle ABC is congruent to triangle PQR, ठीक है, ये साइड आपको पता ही है, ये साइड होती है कॉन्ग्रुएंसी की, जैसे मैंने यहां आपको बताया, ये सिंबल जो है, ओके, ये सिंबल जो है हम यूज करते हैं टू शो वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ये सिंबल जो है हम इसको यूज करते हैं टू शो कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, तो क्या है, हम खाली डालते हैं इज इक्वल टू और उसके ऊपर एक उल्टा एस डाल देते हैं, ट्विंग, ओके, एक इज इक्वल टू डालते हैं फिर ट्विंग, ऐसे करके हो जाता है, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू एंड ट्विंग, ये आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ठीक है। अब ये नोट देखो क्या है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, दिस इंप्लाइज व्हाट, ये क्या बता रहा है हमको, ये हमको ये बता रहा है द करस्पॉन्डेंस इज A is in one to one correspondence with P, B is in one to one correspondence with Q, C is in one to one correspondence with R। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा ये दो ट्राइंगल्स के अंदर हमारा A और P एक के ऊपर एक आ गया है, ओवरलैप हो गया है, कोइंसाइड हो गया है या सुपर इम्पोज हो गया है, ठीक है, ये बता रहा है B और Q कि हमारा B वर्टेक्स और Q वर्टेक्स ये दो ट्राइंगल्स के एक के ऊपर एक आ गए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कौन आगे कौन पीछे है, या कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन सा वर्टेक्स का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, C एंड R, तो वर्टेक्स C ट्राइंगल ABC का और वर्टेक्स R ट्राइंगल PQR का ये दोनों ओवरलैप हो गया है, कोइंसाइड हो गया है, ठीक है। Hence, while writing the congruence of two triangles, care should be taken of the correct order of vertices that observes one-to-one correspondence, discovering or determining congruence, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हमको वन टू वन करस्पॉन्डेंस जो है उसका बराबर ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अगर हमने किसी गलत वर्टेक्स को किसी गलत वर्टेक्स के साथ में अगर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, जो हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है, या गलत साइड को गलत साइड से अगर ज्वाइन कर दिया जो इक्वल मेजर्स के नहीं है, तो क्या होगा, हमारा वन टू वन करस्पॉन्डेंस गलत हो जाएगा, ओके। और अगर हमारा वन टू वन करस्पॉन्डेंस गलत अगर हो गया तो हमारा जो है ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी जो है, ओके, उसका जो फंडामेंटल जो है, उसका बेसिक्स जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो वो यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, triangle ABC is congruent to triangle PQR. This implies the correspondence between A and P, between B and Q, and C and R. अगर ऐसा अगर है हमारा, then hence while writing the congruence of two triangles, care should be taken of the correct order of vertices that observes one-to-one correspondence, determining congruence. ठीक है? So I hope that the entire basic part was very clear, okay, on the either sides.
कुछ रिकॉल का किया हमने, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पर हम लोगों ने, फिर क्या क्या हमने पढ़ा था लास्ट ईयर वो देखा हमने। इस साल हमने जो कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रायंगल्स का शुरुआत किया है 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस का, वो भी समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया बच्चों कोई बात नहीं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। पॉज करो, रिवाइंड बैक, गो बैक एंड सी 2-3 times and you will definitely get through. Okay, so don't worry. In the coming video I will be taking care of different tests, okay, for Congress. There's a certain test, okay, criteria to show that two triangles are congruent. All right, and so my second video will be on that, and in my third video I will begin with practice set 13.1. Okay, so I'm done with my video. I hope that you have enjoyed the video with me. I have went through the entire video very slowly, okay, and tried my level best to make you understand in a very easy peasy way, and I hope that I have succeeded in doing so. और आपको मजा भी आया होगा। इफ दैट इज द थिंग, अगर आपको मजा आ रहा है, आपको मैथ्स पसंद आ रहा है, आपको प्यार हो रहा है इस सब्जेक्ट से, ठीक है, तो आपकी भी मेहनत है, मेरी भी मेहनत है। ऑलराइट, तो अगर इस चैनल से आपको फायदा अगर हो रहा है तो बच्चों एक लाइक तो बनता है। ओके, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, और जो नोटिफिकेशन बेल जो है ना, वो बेल का जो आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूंगा आपको इमीडिएटली नोटिफाई किया जाएगा और आपका कुछ भी वीडियो, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। ओके, तो आपका जो पढ़ाई जो है उसका रिदम जो है, उसका टेम्पो जो है वो इंटैक्ट रहेगा। Okay, so my dear children, I love you all and I am done with my video. See you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.